So kindly everyone turn on your camera so we can practice more. So this is the way a conversation takes place, right? Uh, अभी हम बात कर रहे थे हैबिचुअल एक्शंस की, तो अभी आपने देखा भी कुछ टेस्टिमोनियल हमने ले लिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं कि आप ये करते हो, कि आप वो करते हो, कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप कहाँ जाते हो, आप कैसे ये कर लेते हो, आप कैसे उठते हो, आप कैसे पढ़ते हो, आपने इतना एक्सीलेंस कैसे अचीव किया। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे हैबिचुअल वर्क में। ओके, और अभी कुछ टेस्टिमोनियल लेंगे हम लोग लाइव, दैट विल हेल्प यू ऑफ कोर्स। तो नाउ मयंक शर्मा, यस यू आर रिक्वेस्टिंग दैट टाइम। ऑलराइट, टर्न ऑन कैमरा। Mayank Sharma, and unmute yourself. Sir, yes, sir. So, uh, how are you now? What, sir? How are you? Are you good? How are you feeling? I am fine. Okay. So, let me know, do you talk with your friends? Yes, I do talk to him. You talk with your friends. What time do you wake up? What time do you wake up? सभी लोग आंसर करें कमेंट में, ओके? I wake What up time do at you wake up? I wake up at 6 a.m. You wake up at 6 a.m. प्रिया जी आपने गलत किया है, ऐसे थोड़ा एट लगाइए इसके आगे। I wake up at 5 a.m. आप कीजिए। ओके, ऑल राइट। सो Good evening, sir. very good evening, sir. You're very late. Because sir, I'm not in network. When I come, then I will join. Oh my God. You have to watch the recording. It was very important session today. You missed it. Okay, no problem. You can get the continuum by watching this. We are practicing here, so you can just get an idea what we are doing. So wait for a while, and then you'll get an idea. Okay. Okay, Mayank. So let me know. Do you watch movies, Mayank? Yes, I watch movies. Does your father watch movie? No, he does not watch movies. Okay. What do you like in sweets? I like Rasgulla and sweets. Very good. All right. So, are you vegan or not? What? Are you a vegan? Yes. So, how come do you eat rasgulla? Repeat, करना. Rasgulla is a vegan product. Do you eat vegan rasgulla, Mayank? Yes, sir. You eat vegan rasgulla? Okay, you're confused. vegan किसे बोलते हैं? Yes, sir. Your father is vegan because your father listens to Achar Prasad. So you must know. Okay, no problem. Let us move forward. Uh, do you like uh, sessions of Acharya Prasad? Yes, I like it. Okay. Okay. How do you like our session? It is fantastic. It's fantastic. Uh, do you grow day by day in this session? Yes. Okay. All right. Uh, tell me the things you don't like in your life. Can you tell me some stuff which you don't like in your life? I don't know. You don't have any stuff. Okay. All right. Uh, do you have a bike? No, I don't have Yes. Okay. Do you any have a way. bicycle? Yes, You have a I bicycle. Okay. I have. Uh, all right. Do you like complaining to your teachers? Do you like complaining to your teachers? No, I don't like it. Complaining. Okay. Very good. All right. Amarja ji, you're requesting. Okay. So you come on your camera and unmute yourself, Amarja ji. Well tried, Mayank. Now be active in comment section. Amarja ji, Yes, sir.
All right. Okay. So how are you doing, Amarja ji? Your network is weak. I'm Your network is weak. Unmute yourself first. Unmute yourself. Unmute yourself, Amarja ji. She is having some issue. yes, sir. Yes. I think you have weak connection. All right. So, do you play sports? No, I don't play sports. Do you like drawing? Is this good? Yes, I do like drawing. Yes. Okay. Which singer do you like most? Which I like singer do you like most? Muhammad Rafi most. You, you like I Muhammad like Rafi most. the singer Muhammad Rafi. Yes, Okay. Do you like writing poems? yes, I do like writing poems. Which type of poetries you do? I usually write poetries regarding uh, mostly I see the poems regarding the sorrow, or I write the poems regarding the sorrow, misery, which I It see means around myself. you like to express yourself in poems. Yes, Mostly you like to yes, I like to. expressing yourself. Okay. It's good. All right. Could you please tell me that do you like reading books? Yes, I do like reading books. Okay. Which type of books do you like most? Genre? Uh, Usually, I like to read the books uh, like um, like of great peoples, uh, like Mahatma Jyotirao Phule books, or other persons which are considered as a great. It So means I you like like to wisdom read literature. books of those persons. Yes, I like to learn and read wisdom literature. All right. All right. Okay. Do you participate in Gita activities? Your network is very weak. All right. Hmm. Okay. Uh, Abhishek ji, did you now get idea that what we are doing here? Could you please turn on your Yeah. camera? Yes. I hope Here you only. got Yes. I hope you got some idea. If I ask question, you can answer. Yes. I'm Okay. ready. All right. So let me know what time do you wake up early in the morning? I wake up at 5 o'clock. 5 o'clock. Okay. All right. What do you do generally after waking up? First go to washroom, fresh up. After that, go for morning walk with students. All right. Let me know that do you like reading books? Yeah, I like book reading. I like books reading. When I free, generally I want to read novels like also Gita Gita. Okay. or any Bible. Yes, talking about Gita, I just remember Acharya Prasad. Do you listen to Acharya Prasad? When I'm free, when then I open the recording sessions, and then there I was see Sorry, repeat the statement. when I was free. When I No, was free, when I am free. when I'm free, When when I I am am free or I free, get free. Yes. Yeah. when I get free, then I see Not see, watch. I recording. watch. I watch uh, recording sessions.
All right. So you don't attend live sessions? Only one session I was taken, I think, which was conducted on Sunday, last Sunday. All right. I want anyone to communicate with Abhishek Yadav ji. Does anyone uh, like to communicate with the person you don't know? Of course, here you will get together. Why not Atul Kashyap ji? Would you like to communicate with him? The questions like I am asking, you can also ask. But remember, you should ask questions in simple present. It would be more engaging. So put off your hesitation, come forward and talk with Abhishek Yadav ji. Here we ask only present indefinite tense, present tense only, right? Am I हाँ, right? present. Yes. So Atul Kashyap ji will ask question and he will answer. Yes. Both of Yes. you kindly Okay. engage. How are you feeling now? Hello. Yeah, I'm very fantastic. I'm marvelous. And you? I'm also Tell me good. about Thank it. you for asking. Okay, what do you do now? I'm just taking session of English spoken. Yeah. Oh, yes. Tell me about yourself, brother. Go. So my name is Atul Kashyap, and I work in Indian Railways as electrical assistant. Yeah. I One am thing, too hesitant to. yes. One thing is missing, Atul ji. You are not expressing yourself. You are not asking questions. You just ask how are you and like Sir, I have not any question in my mind, so I'm a little bit hesitant. wait. Let us change this. I have not any question. बचपन से पढ़ाया गया है I have not this, I have not that. मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद काफी लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह से. I have not any questions ये wrong है. I have not a pen wrong है. बचपन में मुझे भी पढ़ाया गया था. बट आप इसे बोलेंगे I don't have any question या बोलेंगे I have no question. Do you know why? I have ये no. हाँ, ये I इसलिए have होता है no question. क्योंकि I don't have any. जी हाँ बोलिएगा I don't अभिषेक have जी. any Yes. question. I don't I have have any no question is question. correct. I don't have any question. I don't have any question. ठीक है. हैव के साथ ये भी प्रेजेंट में ही आता है, सिंपल प्रेजेंट में. बट हमें हैव नॉट पढ़ाया गया, वो गलत है. आने वाले क्लासेस में आपको इसके पे कॉन्सेप्चुअल क्लास में देखने को मिलेगी. तो फिलहाल के लिए बेसिक समझ लीजिए. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन. यस आई हैव अ क्वेश्चन, ऐसे बोल सकते हैं. ओके. ऑल राइट, सो यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन. समर्थ काम्बरी जी, आर यू देयर? Yes, sir, I am here. Okay, would you like to communicate with Abhishek sir? Sure, sir, I can. Yes. Okay. Go ahead. You Hello, can start asking. hello. Okay, sir. Hello, my Hello. name is Samrat Kombiri. How are you feeling? Hello, Samrat. I'm feeling good. And you? I am feeling great. Just to ask, what do you do right? Where do you live in India? Sorry, Samrat. I'm Please. asking, where do you live in India? Yes, I reside in Reside, sorry, Etawah. reside, not reside. Reside, Reside. reside at Etawah in UP, Uttar Pradesh. Nice. Any questions on your And you? mind? Yes, sorry. Any, any questions on your mind? And you belong from I which belong state? from Delhi, Delhi. specifically Yeah. Northwest. Just a minute. I'd like to correct. Just a minute. अभी आप दोनों ने कन्वर्सेशन किया. अभी इन्होंने जो क्वेश्चन किया था कि वेयर डू यू रिजाइड, ऐसा कुछ क्वेश्चन किया. तो वहां पर जब इन्होंने आंसर किया था तब ये क्वेश्चन कर सकते थे, क्वेश्चन बैक. जैसे कहते हैं ना हाउ आर यू, तो आप वहां करते हो आई एम फाइन थैंक्स, व्हाट अबाउट यू. तो ऐसे वेयर डू यू रिजाइड, आई रिजाइड एट इटावा इन यूपी, व्हाट अबाउट यू. ये चीज याद रखेंगे, है ना. ये What about यहाँ you? पर, यहाँ पर ये क्वेश्चन कर सकते थे अभिषेक सर आप. और एक चीज और,
जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि व्हाट्स ऑन योर माइंड, ऐसा कुछ किया था, वो क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्या क्वेश्चन किया था आपने? समथिंग लाइक। As I asked, are there any questions on your mind? हाँ, आर देयर। तो अगर इसको हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लाने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने रिपीट भी किया था, क्या बोल रहे हैं आप? तो आप बोलते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चन। ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा Okay, sir. कम्युनिकेशन को सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे हमारा प्रैक्टिस के हिसाब से। ओके। ठीक है sir. यस। आस्क मोर। No, I do not have any question. I do not have any question. Question. Same here, sir. सेम हियर। ओके। ऑलराइट। प्रसाद, आर यू देयर? टर्न ऑन कैमरा, प्रसाद। सुहानी, सुहानी, आर यू देयर? Yes, sir. काइंडली टर्न ऑन कैमरा। सुहानी। Yes, यस। sir. ओके। सो हाउ आर यू नाउ? Fine. And यू गुड? ओके। yes, sir. And you? I'm also doing well. Thanks for asking. So, do you want to talk with someone here? No, no, Do you want to communicate with someone? no, sir. Sorry. You don't want to communicate with anyone. Okay. Do you want to talk with me now? Sorry, sir. No. You are being hesitant. All right. Let me know some answers. Then you can just leave yourself. Let me know what time do you wake up in the morning? I wake up around 10. You're having network issue. What time do you wake up in the I morning? wake up around Network issue. No problem. Prasad, turn on a camera and mic. प्रसाद जी, आर यू हियर? अभी तो आपने ऑन किया था। Yes, sir. यस। व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग? I wake up in the morning at 8 o'clock. ओके। व्हाट स्वीट डू यू लाइक मोस्ट? So I डू यू like लाइक एन? यस। nothing. I don't like. सॉरी, यू डोंट लाइक स्वीट्स? Yes, I don't like. हाँ, so you could say sorry, sorry, I don't like sweets. So you resemble with Atul ji. He also doesn't like the sweet. Okay. Do you want to talk with Atul ji because you are also hesitant and he is also hesitant? So introvert plus introvert, extra extrovert. Do you wish to talk with him? Uh, no, sir. I am not comfortable. Okay, Then which I dish you understood. like, Mr. Prashad ji? Which dish you like? Uh, Not fix any dish. I like everything. You like everything. Great. Sir. Do you like bitter or sweet? What? Do you like bitter or sweet? I'm not listening here. What you say? Am I audible? Am I audible? Yes, मयंक yes. शर्मा कह रहे हैं इतना थोड़ी सोचना होता है, फेवरेट डिश बताओ भैया। My question is, Everything I you like. Not any like fix. bitter or sweet? All right, it's being tough though. ओके। अभी आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कुछ लोगों को तो ज्यादा स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, जैसे आपको भी, प्रसाद जी एंड उत्कर्ष जी, आपको भी बहुत अटेंशन की जरूरत है। सुहानी जी, आपको भी। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है? देन यू विल बी इम्प्रूविंग फास्टर। तो अभी जिस तरह का आपने डेमो देखा, इस तरह से अभी एक दो क्लासेस और हो जाए तो ये जो एक्टिविटीज है ना, जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया यहाँ पे, अभी मैं एक्टिविटी डालूंगा कल, तो आपको थोड़ा आइडिया भी होगा। जब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसमें हम उसी बेस पर
कम्युनिकेशन करेंगे अपने ग्रुप में, जो हमारा बना है ना ग्रुप, उसमें आप एक वॉइस नोट शेयर करोगे। हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड आई एम हियर टू प्रैक्टिस विद यू। दिस टॉपिक चल रहा है हमारा ऑन हैबिचुअल वर्क, या फिर ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस। तो ऐसे आप बोल सकते हो दैट दिस इज अभिषेक यादव एंड आई एम हियर टू प्रैक्टिस for the habitual work sentences, ऐसे बोल सकते हो, and then you can start asking the question. So what time do you get up in the morning? Uh, what what dishes do you like most? What sweet do you like most? What color do you like most? Okay. What do you like to do in free time? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेंगे जो जो मतलब प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को ही शो करें। तो उससे क्या होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा एंगेजिंग भी लगेंगे आप, कि आप एक दूसरे को क्वेश्चन कर रहे हैं, देन दे आर आंसरिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे एंड मेक श्योर कि कोई एक दूसरे को पर्सनल मैसेज ना करे। इसके बारे में मैंने आपको एक वो भी डाला था, क्योंकि लास्ट टाइम एक तो वो आया था, कंप्लेन आया था। सो दिस excuse me, थिंग sir. वी कैन स्टार्ट। Excuse me, sir. हाँ, My one opinion is this here. If someone interested who talk when he free, then he want to discussion or communicate to any person, they were interested, they first send the message in group, I want to talk anyone, if anyone free then you call me, then speak क्या उसमें अगर कोई interested है, then he will call that person and they I communicate each understand. other. I understand your concern. That is a good idea, good advice as well. But what do I want? I want that the group should be engaging. If you are planning to do something like that, we have the feature on WhatsApp. We do have the feature of voice note that we can use. You know why? I'm just telling you for two reasons. When I was learning English, Yeah. I was using voice notes. The first reason is that when you are using voice notes, you are able to assess yourself what you are speaking. And second thing, you know that this group is personalized. So here I'm your personal tutor. So I do watch all the videos, I do listen to your audios. So I would be assessing like you are speaking right or not. But if both of the persons are talking and they are beginner and they are talking, they are doing mistake, there is no one to guide. So this thing is also there. And second thing, I want the group should be engaged. So in that way, if you are using voice note feature, you would be also able to assess that what I spoke, मैंने सही बोला या नहीं बोला। तो दिस फीचर कुड कम। हाँ, कमिंग टाइम में हम यूज करने वाले हैं फीचर, जो ग्रुप डिस्कशंस होंगे, डिबेट होंगे, तो उसमें हम ओपन टॉक रखेंगे। जिस जिस तरह का आइडिया आपने दिया वो आने वाला है। तो इन दैट टॉक वी विल बी डिवाइडिंग टू टीम्स, वो सब चीजें होंगी, एक्टिविटीज होंगी। तो इन दैट टाइम दैट आइडिया विल बी ब्राउड, जो आपने बोला। अभी हम लोग को इस तरह से करना है ताकि आपका असेसमेंट अच्छे से हो सके। राइट। Okay, sir, no issue. ओके। सो गाइज आई होप आज का सेशन आप थोड़ा और अच्छे से एंजॉय कर पाए होंगे। तो अब आप यहाँ से जा करके, मैं हर बार क्वेश्चन लिखता था कि टेक योर टाइम टू राइट रिफ्लेक्शन, तो इस बार आपकी मैं एक्टिविटी रखूंगा कि आप लोग रिफ्लेक्शन दोगे इस क्लास का, कि कैसी लगी क्लास। ओके। सो अगर आप लोग कभी कर सकते हो तो अभी वही टास्क आने वाला है, रिकॉर्ड योर वीडियो दैट हाउ डिड यू लाइक टुडे सेशन एंड व्हाट डिड यू लर्न। तो ये आप अगर वीडियो बना पाएंगे आज तो आज बना लीजिएगा, नहीं तो कल तक आप लीजिएगा। क्लियर एवरीवन? So I hope you enjoyed the session. I also enjoyed the session. Thanks for joining everyone. Does anyone have any Bye, question? sir. Hi. Good night, sir. No सर question. Thank you, I do sir. not have any question. हेलो All right. Yes. I Do do you not have any have any question? question. हेलो Yes, Abhishek sir. हाँ सर। Yes, बताइए। Do you have any सर ये कह question? रहे थे कि थर्ड पर्सन जो रहता है, थर्ड पर्सन में जैसे ही शी इट आता है, तो वो दोज भी आएगा, आ जाएगा क्या, दीज और दोज, नहीं, थर्ड पर्सन प्लूरल में? नहीं। These और those डेमोन्स्ट्रेटिव है। जब मैं बोलूंगा these boys तब थर्ड पर्सन होगा। These go to temple ये रॉन्ग है। These boys go to temple सही है। कभी सुना है these go to temple? मैं बोलूंगा ये जाते हैं, नहीं। आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, ये मंदिर जाते हैं, इसकी अंग्रेजी बनाइए, क्या बनेगा? ये मंदिर जाते हैं। तो दे गो टू टेम्पल। यस। अच्छा बताइए, अ, ये मेरे सामने मतलब एक एक व्यक्ति है
मैं उनको सम्मान देता हूँ। मैं कहता ये भाई साहब है ना, ये मंदिर जाते हैं, आप बताइए। एक व्यक्ति है, ये मंदिर जाते हैं, आप बताइए। हिंदी में बोल रहा हूँ, ये So मंदिर जाते हैं, he लेकिन goes एक। हाँ। ही। he goes to temple. हाँ, या तो दे गो टू टेम्पल होगा, या तो ही गोस टू टेम्पल होगा। समझ में आ रही बात? तो वहां पे दीज गो टू टेम्पल आप जो सोच रहे हो ना, वो उस तरह से नहीं पाए। वहां पे हो जाएगा दीज बॉयज, और ये सर लड़के मन। हाँ। सर them हो सकता है क्या them? दैम तो ऑब्जेक्टिव केस है ना भाई, दे का। थर्ड पर्सन ही है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस है, वो तो उसी का पार्ट ही है। तो हो सकता क्या है, वो तो है ही ऑलरेडी। दे, देयर, दैम, ये तो तीनों थर्ड पर्सन में ही है ना। एक They are them. एक सब्जेक्टिव केस है दे। देयर है पोसेसिव, तो पोसेसिव मतलब होता है किसी पर अधिकार रखना। देयर पेन, ये उनका, उनके देयर पेन्स, ये उनकी कलम है, कलम है, दीज आर देयर पेन्स। या फिर आई एम टॉकिंग टू दैम, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो थर्ड पर्सन तो है ही। क्लियर? एक एक Okay. पोसेसिव केस हो गया, और एक हो गया आपका लास्ट में ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, पोसेसिव, ऑब्जेक्टिव। एनी समझ। अदर क्वेश्चन? Thank no sir. ओके, Sir, I तो want to ask one question. यस प्लीज। सर, आज के जो वीडियो था वो का बिल्डिंग टास्क, उसमें रिकॉर्डिंग में मैंने एक सेंटेंस भेजा था। उसमें ये था कि वी रिमेन विजिलेंट while we going through a jungle at night time। तो आपने उस पे भेजा था कि वी के बाद रिमेन नहीं आएगा। यस। मुझे अब मैं इसका आपसे कारण जानना था। कारण मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, वो कारण स्पष्ट हो जाएगा। मुझे बताइए, आपने शायद नोटिस देखा हो, कि जब लिखा होता है, दो एग्जांपल दे रहा हूँ, स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, एक एग्जांपल स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, या फिर एक एग्जांपल स्कूल विल बी रिमेन क्लोज्ड। दोनों में से कौन सा सही है, पहले ये बताइए। स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड या स्कूल विल बी रिमेन क्लोज्ड? सभी लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा। स्कूल स्कूल विल विल रिमेन क्लोज्ड या फिर स्कूल स्कूल विल विल बी बी रिमेन। क्या? बोलिए बोलिए। स्कूल विल बी रिमेन क्लोज्ड। हम्म। और स्कूल विल रिमेन क्लोज, ये गलत है, क्लोज्ड। स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, ये बताइए जरा। बताइए जल्दी बताइए, थोड़ा कंफ्यूज है आप, समझाना होगा। आपके लिए मैंने एक पोस्ट भी लिख ली थी, और मैं उसको भेज देता हूँ, लेकिन फिर भी इसको समझ लेंगे, इसको देख करके। आह, इसको मुझे समझाना था, अभी आपने थोड़ा पूछा है। अभी मैंने एक ग्रुप में पोस्ट भेजी है, जो इसमें पहले इसका बात कर लेते हैं। इसमें जो सेंटेंस होगा आपका होगा स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, सही है। ठीक है, स्कूल विल रिमेन क्लोज, ये नोटिस पर आता भी था हमारे। प्रिया जी कुछ पूछना चाहती हैं, हैंड रेज किया आपने। हाँ सर, हमको कैसे पता चलेगा आपने जो दो सेंटेंस डाला, ये हमको कैसे पता चलेगा कौन सा सही है? क्योंकि ग्रामेटिकल तो इतना कुछ पता नहीं, तो कैसे मैं जानूंगा? हाँ, तो मैं हूं ना बताने के लिए, मैं बताऊंगा ना। मैं तो अभी यहाँ पे नॉलेज चेक कर रहा हूँ कि आपको पता है या नहीं, क्योंकि ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक्चुअली में नोटिस पे लिखा होता है, जितने लोग पढ़े होंगे स्कूल में थोड़ा इंग्लिश मीडियम में, तो उनके नोटिस में लिख के आता है ना जब स्कूल बंद होता है, तो इसलिए इट विल रिमेन क्लोज्ड, ऐसा कुछ। अब बताता हूँ बी और रिमेन क्या है। बी का मतलब होता है होना। ठीक है, समझिए, बी का मतलब होता है होना। मैं कह रहा हूँ विजिलेंट बनिए, सतर्क बनिए, सतर्क रहिए, होइए। तो मैं क्या बोलूंगा, बी विजिलेंट बोलूंगा। इतना क्लियर है हमारे जी? अगर मैं कहता हूँ सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्या बोलूंगा, बी विजिलेंट बोलूंगा, बी अटेंटिव बोलूंगा, बी केयरफुल बोलूंगा। क्लियर है? ठीक। अब समझिए रिमेन का अर्थ क्या होता है। रिमेन का अर्थ होता है बने रहना। क्या होता है? बने रहना। उसका अर्थ भी होना ही होता है, एक्चुअली में होना ही होता है। तो हम उसको बोलेंगे कोई चीज बनी रहे, अपने आप में स्टेट में बनी रहे, तो हम बोलेंगे रिमेन साइलेंट, शांत बने रहिए, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। या फिर रिमेन विजिलेंट, सतर्क बने रहिए। एक हो गया सतर्क बनिए, सावधान रहिए। एक हो गया सावधान बने रहिए। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सही होंगे। एक रिमेन विजिलेंट, ये सही है, बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। और एक बी विजिलेंट, ग्रामेटिकली करेक्ट है एक कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन आप कर रहे हैं बी रिमेन विजिलेंट, तो यहाँ पर जो बी है, बी के बाद नाउन आता है। क्या आता है बी के बाद? नाउन।
ठीक है, बी फॉर्म के बाद नाउन आएगा हमेशा, इज एम आर के बाद देखिए हमेशा नाउन आता है। आई एम अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ऐसे ही। तो विजिलेंट जो है वो एडजेक्टिव है, बी के बाद, हाँ बी के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, जैसे बी ब्यूटीफुल, सुंदर रहिए, सुंदर बनिए। आप कहिए रिमेन ब्यूटीफुल, तो सुंदर बने रहिए, ऐसा हो जाएगा। आप कहिए बी रिमेन ब्यूटीफुल, तो थोड़ा ये कॉन्टेक्स्ट गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आपने कहा बने रहिए, पहले रहिए, बने रहिए, सुंदर रहिए, बने रहिए, सुंदर, इसकी हिंदी में निकालेंगे ना तो बड़ा ही गड़बड़ सा लगेगा कहना। बी मतलब होना या रहिए या बने रहना, नहीं, या बनिए। बी मतलब बनिए या होना, बनना या होना। और रिमेन मतलब बने रहना। ठीक है, तो मैंने कहा बी विजिलेंट, विजिलेंट विजिलेंट बनिए, सतर्क बनिए। मैंने कहा रिमेन विजिलेंट, सतर्क बने रहिए। अब मैं कह रहा हूँ बी रिमेन विजिलेंट। बी मतलब बनिए, रिमेन मतलब बने रहिए, विजिलेंट मतलब सतर्क। सतर्क बने रहिए, बनिए। आपको इसको ऑड नहीं लग रहा है हिंदी में भी, अमरजा जी? थोड़ा सा देखिए। और एक कॉन्टेक्स्ट में और कह सकते हैं उसको, जो रिमेन विजिलेंट है वो हम कहते हैं कि कोई चीज अपने आप में बनी रहेगी, यानी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा। और जो बी विजिलेंट है उसमें हम कहेंगे कि एक, कह दिया कॉमन रूप से कि आपको ये सतर्क रहना है। और जब हम कहते हैं कि रिमेन विजिलेंट से पहले हम बी लगा देते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है हमारा, क्योंकि रिमेन आएगा या तो बी आएगा। ये ठीक उस प्रकार है जैसे आप कहें इज और आर दोनों साथ में लगा दें क्या, इज आर विजिलेंट, यू आर इज विजिलेंट, क्या ये सही है हमारे जज? यू आर इज विजिलेंट? नो। नो। ऐसे ही मैं कहता हूं यू आर रिमेन्ड करेक्ट है, या यू आर रिमेनिंग करेक्ट है, या यू आर रिमेन करेक्ट है। तीन सेंटेंस बोले मैंने, यू आर रिमेन्ड, यू आर रिमेनिंग, यू आर रिमेन, कौन सा करेक्ट है इसमें से? एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है, सोचिए और बताइए। यू आर रिमेन्ड, यू आर रिमेनिंग, यू आर रिमेन। मे बी यू आर रिमेन। यू आर रिमेन्ड करेक्ट है यहाँ पे, यू आर रिमेन्ड भी करेक्ट है और यू आर रिमेनिंग भी करेक्ट है। एक चीज और समझ आता हूँ यहाँ पे, जब भी हम वर्ब यूज करते हैं तो दो वर्ब साथ में बिना टू के या बिना आईएनजी फॉर्म को ऐड किए जीरंड बने नहीं आते। जैसे मैं कहूँ टॉक, ट्राई टॉक, ट्राई टॉक, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? आई ट्राई टॉक बोलेंगे, आई ट्राई टू टॉक बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे? आई ट्राई टॉक या आई ट्राई टू टॉक, कौन सा सही है? आई ट्राई टू टॉक। आई ट्राई टू टॉक। तो अगर आप मुझे बोलें कि आई ट्राई टॉक, तो ये सेंटेंस सही होगा गलत होगा? गलत होगा। ऐसे ही बी एक वर्ब है। बी क्या है? वर्ब। बी मतलब होता है होना। बी क्या है? बी क्या है? वर्ब। वर्ब। और रिमेन क्या है? रिमेन मतलब होता है बने रहना। रिमेन भी क्या है? वर्ब। तो क्या दोनों बी, दोनों वर्ब साथ में आ सकते हैं? नो। तो बी और रिमेन साथ में आएगा। नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूं बी रिमेन्ड, तो क्या साथ में आ सकता है? बी रिमेन्ड। डोंट नो, आई फाइंड इट एज कंफ्यूजिंग। देखिए दो वर्ब साथ में नहीं आएंगे, इतना तो क्लियर हुआ। क्या इतना क्लियर है आपको? दो वर्ब साथ में नहीं आएंगे, इतना क्लियर है। हाँ। बिना कोई कनेक्टर के साथ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर बी और रिमेन दो वर्ब है, इसलिए साथ में नहीं आएगा। इतना क्लियर हुआ आपको? मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ। ओके, हाँ इतना क्लियर है। हाँ, ये आपका क्वेश्चन था, इतना आपको क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और हम्म, यूज सीखिए। जैसे मान लीजिए कभी, जैसे अभी हम्म, मैंने क्वेश्चन किया था, यू आर रिमेन्ड या यू आर रिमेनिंग या यू आर रिमेन, तीनों में से कौन सा सही है? बी वर्ब के बाद कभी भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, यानी इज एम आर के बाद कभी आपने देखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? आई एम गो कभी देखा है आपने? आई एम गो। नो। नो। आई एम डू देखा है कभी? नो। लेकिन आई एम डन सुना है आपने? आई एम डन, आई एम डन। यस। ठीक। ऐसे ही आई एम आई एम। प्रो,
आई हैव डन भी होता है। ऐसे ऐसे आपने आई एम ब्रेक सुना है, आई एम ब्रेक, नहीं। लेकिन आई एम ब्रोकन सुना है आपने, आई एम ब्रोकन, हाँ। समझ में आया? तो एम क्या है, एम इतना क्लियर है कि ये बी फॉर्म है, इतना क्लियर है आपको? ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, आई एम ब्रेकिंग द ग्लास, आई एम ब्रेकिंग सुना है आपने? यस। आई एम ब्रेकिंग द ग्लास में आई एम ब्रेकिंग आ गई। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो, बी फॉर्म के बाद एम बी फॉर्म है, इतना तो क्लियर है ना, समझाना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, समझा चुका हूँ पहले। जी। तो बी फॉर्म के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? इसका यस। मतलब किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर थर्ड फॉर्म आ रही है रिमेंड की, बी रिमेंड, तो वहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला इट विल बी रिमेंड, ये बच जाएगा, इट विल बी रिमेंड, वो सही है, या इट विल बी रिमेनिंग, ये बचा रहेगा, दोनों सही है। लेकिन इट विल बी रिमेन ये गलत है। क्लियर हुआ? यस। आई होप अब आपका एग्जाम्पल भी अच्छे तरह से क्लियर हो गया और जो बात मैं समझाना चाह रहा था वो भी क्लियर हो गई, एक के साथ दो बोनस पॉइंट भी आपको मिल गए। यस। क्लियर? यस। थैंक यू क्लियर सर। नहीं हुआ है तो पूछ लीजिए, फिर बाद में आप कहते हैं क्लियर नहीं हुआ है। एक बार आपका वर्ड था, आपने बोला कि वो वर्ड मैं यूज नहीं कर पाई क्यों क्लियर नहीं हुआ। बाद में कोई क्वेश्चन ना बचे। नहीं। ओके, थैंक यू। चलिए, काफी लंबा टाइम हो गया। ओके, सो आप लोग रिफ्लेक्शन का वीडियो बनाइए और भेजिए, स्पेशली दिस क्लास को। ठीक है एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? No, sir. Thank you, sir. ओके, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Good night. Good night, sir. वेरी गुड।